Hello, good morning, friends. Welcome back. Standard 11, subject English, lesson number 4, The Landscape of the Soul, written by Nathalie Troveroy. Okay, so this is very interesting story, an interesting lesson you can say. In this lesson, you have two different stories to define two different art, Chinese art and European art or Western art. Before we start the lesson, we will discuss about the writer Nathalie Troveroy. Okay, so I have written here some introduction about Nathalie Troveroy. So first of all, lesson number 4, Landscape of the Soul. Nathalie Troveroy, introduction. So who is she? Nathalie Troveroy is the wife of the Belgian ambassador to India. Is an art historian. She has done her masters in the history of art and archaeology with specialization in Japanese art from Catholic University of Leuven in Belgium, Spain at the Arrowdale Heritage of Delhi. तो नथाली ट्रोवेरोय जो है वो वाइफ है किसकी बेल्जियम एम्बेसडर ऑफ टू इंडिया एंड she has done a masters in the history of art and archaeology with specialization in Japanese art. Okay, from Catholic University of Leuven, Belgium. उन्होंने बेल्जियम में से मास्टर्स तो किया है, उसके साथ साथ जापानीज आर्ट में उन्होंने आप बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन किया है और वो भी बेल्जियम में. ओके, सो वी कैन से शी इज एन यूरोपियन. In this lesson, the writer contrasts two forms of art. Okay, two forms of art. Okay, the one is Chinese art and European art by using two different stories. Okay, so in this lesson, Nathalie Troveroy she wants to show us the two different forms of art. Okay, Chinese art and European art, or you can say Western art, how they differ from each other. Okay, so you can write down in this introduction while you are appearing for your board examination. You have to write down the introduction as I told you before. In this lesson, the writer contrasts two forms of art. So today we are going to discuss about this lesson, two different stories. Once you read the story, maybe you cannot understand, but the theme, once you understand the theme, it's very easy for you to understand the stories. Okay, so I will tell you the theme, what is the main theme or what is the summary of this lesson. Then you can read once and then we will continue the lesson. So Nathalie Troveroy, wife of Belgian ambassador to India, is an art historian. Nathalie has done her masters in the history of art and archaeology with specialization in Japanese art from Catholic University of Leuven in Belgium. Is painted at Arrowdale Heritage of Delhi. Recently, you can know something more about Nathalie Troveroy. Recently, she and her friend Agnes Montehari translated William Jardin's masterpiece on Delhi, City of Jinns in pictures. She has been imbibing the cultures of the various cities she visits. Okay, so if we talk about the summary, so here she compares two different art. दो अलग अलग जो आर्ट है, चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, उसके बीच में जो डिफरेंस है चाइनीज आर्ट से दूसरा जो आर्ट है, जो पिक्चर है, जो इमेजेस है, जो आर्टिस्ट जो ड्रॉ करता है, ओके, तो वो कितना डिफरेंट है वो हमें इस लेसन में पढ़ना है. सो द राइटर कंट्रास्ट टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज. हमारे पास यहाँ पे दो स्टोरी, एक्चुअली तीन स्टोरी हमारे पास. मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा. दो चाइनीज स्टोरी और एक यूरोपियन स्टोरी है, तो आप उससे समझ सकते हो कि कितना अलग है पॉइंट ऑफ व्यू. अगर व्यूअर को अगर पॉइंट ऑफ व्यू में देखे कि व्यूअर जैसे दिखता है, तो जो चाइनीज आर्ट है वो उसमें क्या होता है, जो व्यूअर होता है वो अपना खुद का विजुअलाइजेशन वो उसमें डाल सकता है.
लेकिन यूरोपियन आर्ट जो है वो एकदम सिंपल है, जो जैसे पेंटर ने बनाया है वैसे हम उसको देखते हैं। लेकिन जो चाइनीज आर्ट है वो पेंटर ने बनाया तो उसने जो बनाया है तो हम जब देखते हैं उसको तो उसको डिफरेंट एंगल से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे वो हम देखेंगे आगे। 8th सेंचुरी की बात है, 8th सेंचुरी चाइना की बात है। उसमें 10th एम्परर ज़ुआनज़ोंग था जिसने कमीशन किया था, वो कमीशन अ पेंटर वू दाओजी टू डेकोरेट अ वॉल इन द पैलेस। सो इट इज अबाउट 8th सेंचुरी चाइना and 10th emperor Xuanzong who commissioned a painter to paint a wall in a palace। तो एक 10th emperor था जिसका नाम था Xuanzong, उसका जो पैलेस था उसको उसका एक वॉल था उसको पेंट करने के लिए उसने एक पेंटर अपॉइंट किया और उसका नाम था वू दाओजी। बहुत ही फेमस पेंटर है वो, आप यू कैन गूगल आउट वू दाओजी, सो यू विल फाइंड समथिंग मोर अबाउट वू दाओजी। या एंड you are in 11th standard, 12th standard, so this is your responsibility also to find out or search out something more about the writers and the characters, okay? So you can google out something more about Wu Daozi। Wu Daozi ने वो wall paint किया था। लोग कहते हैं कि it is his last painting, it was his last painting, वो उसकी last painting थी। क्यों वो देखते हैं। सो ही पेंटेड अ very beautiful landscape on the wall। Wu Daozi's last painting and to decorate a wall, and he had hidden his work behind the screen। So because he doesn't want that the other people can see it, okay? So he had hidden his work behind the screen, so only the emperor, only the Xuanzong can see it, okay? So उसने अपना जो वर्क था, अपना जो आर्ट था वो स्क्रीन के पीछे छुपा दिया ताकि जो 10th एम्परर ज़ुआनज़ोंग है वो अकेला ही उसको देख सके। Then he asked 10th emperor to see the wall piece or landscape or painting। Then the 10th emperor he came and then he saw the painting। वो वहाँ पे उसको ज़ुआनज़ोंग को बुलाता है, आप उसको बोलता है कि आपकी पेंटिंग रेडी, आप आके उसको देख सकते हैं। तो 10th एम्परर जो ज़ुआनज़ोंग है वो वहाँ पे आता है, वो पेंटिंग देखता है और उसको बहुत ही वो पसंद आता है। He admired everything in this painter, okay? So he admired so many things in this painting, and for example he admired, उसका एक लैंडस्केप बनाया था, कुदरती दृश्य आप जिसको बोलते हैं, नेचुरल सीन जिसको। तो he admired the clouds, okay, the trees and the people going over there। So उसने जो भी सीन में जो भी था, उसने माउंटेन्स देखे, क्लाउड्स देखे, बर्ड्स देखे वहाँ पे उड़ते हुए, कुछ लोग वहाँ से जा रहे थे, रिवर्स थी वहाँ पे, तो सबने उसको देखा। उसको जो वू दाओजी था, जो पेंटर था उसने उसको बोला कि आपने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है और जो भी आपने सीन्स बनाया, जो भी ऑब्जेक्ट्स अंदर बनाए वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला रहता है, जो एम्पायर है वो उसको एडमायर करता है उसकी पेंटिंग को। लेकिन एक दिन जब 10th एम्पायर और जो वू दाओजी पेंटर वो दोनों साथ में एक साथ पेंटिंग को देख रहे थे, तब जो वू दाओजी है वो बोलता है कि इन दिस पेंटिंग I have made one cave, okay, one cave at the bottom of the mountain, and you can see the door and you can enter in the cave। ये एक इमेजिनेशन थी उसकी, जो पेंटर थे उसका अपनी इमेजिनेशन थी। उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसने ऐसा बनाया है कि एक केव है, गुफा है और उसमें एक डोर है, अगर वो डोर के अंदर आप जाओ तो यू विल फाइंड आउट स्पिरिट, उसके अंदर आपको एक आत्मा मिलेगी, ऐसा वो उसने एम्पायर को बताया, ओके? सो he said that have one cave which dwells means lives a spirit। The painter clapped his hand but the entrance closed behind him, okay? So क्या हुआ, उसने जब वो क्लैप करता था उसने बोला कि मैं जब क्लैप करूंगा तो जो डोर है वो खुल जाएगा पेंटिंग का, मैं अंदर जा सकता हूँ और आप भी मेरे पीछे आप फॉलो कर सकते हो। और उसके अंदर बहुत ही आप बोल सकते हो कि वेरी ब्यूटीफुल सीन इनसाइड था, कि बहुत ही अंदर
और कुछ है अंदर देखने के लिए, और वो ऐसा भी होता है कि उसमें अंदर स्पिरिट भी है, आत्मा भी है। तो एम्परर उसको सुनता है और जब वो क्लैप करता है तो डोर खुल जाता है और वो दाऊजी उसके अंदर एंटर हो जाता है। और जब भी वो एंटर होता है तभी वो जो पेंटिंग है वहां से वॉल में से वो गायब हो जाती है, और उसके साथ साथ वो दाऊजी भी गायब हो जाता है, और उसका मतलब उसके सारा सामान जो है वो भी वहां से गायब हो जाता है। और लोग कहते हैं कि उसके बाद किसी ने वो दाऊजी को देखा नहीं। ये एक चाइनीज स्टोरी है। ओके, तो ऐसा होता है जब वो एंटर होता है तो वो दाऊजी जब अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है बाहर से, और वहां से वो दाऊजी जो है वो गायब हो जाता है। आफ्टर दैट दे couldn't find वो दाऊजी and his work. Such stories played an important role in Chinese classical education. So this kind of stories plays an important role in Chinese classical education. तो ये जो चाइनीज का जो क्लासिकल एजुकेशन है वहाँ पे ये ऐसे तरह की स्टोरी वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये एक स्टोरी है, चाइनीज स्टोरी है। ओके, दूसरी एक चाइनीज स्टोरी है, वो है एक पेंटर था, वो ड्रैगन बना रहा था। He always used to make a painting of dragon, but he never made his or its eyes. वो कभी ड्रैगन की आईज नहीं बनाता था। Okay, so the painter who couldn't draw an eye of dragon he had painted in fear it would fly and out of painting. तो वो क्यों नहीं बनाता था? Because he had a fear that the dragon will fly out from the painting. तो वहाँ बनाएगा तो वो ड्रैगन है वो पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा और वहां से भाग जाएगा। तो ऐसे एक दूसरी स्टोरी, आप शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं, आपको शॉर्ट स्टोरी कि चाइनीज जो एजुकेशन है उसमें एक दूसरी एक स्टोरी थी कि ये जो पेंटर था वो ड्रैगन ड्रॉ करता था, लेकिन वो उसकी आंखें नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि वो जो ड्रैगन था वो पेंटिंग में से बाहर निकल के भाग जाएगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया चाइनीज स्टोरी का। अभी we will discuss about European story or European art and Western art. तो it is about 15th century, 15वीं सदी की बात है, 15th century की बात कर रहे हैं। It's about 15th century in Belgium, बेल्जियम की बात है। और एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था, and his name was Quentin Matsys. Okay, there was one master blacksmith and his name was Quentin Matsys. एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था और उसका नाम था क्विंटन मैस्टिस, एंड ही फेल इन लव विद अ ग्रेट पेंटर इन यूरोप और बेल्जियम। तो उसको लव हो जाता है एक पेंटर की लड़की से। ओके, सो ही फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, लेकिन द फादर ऑफ द डॉटर ही डिडंट अलाउ सच अ प्रोफेशन। ऐसा उसको ब्लैकस्मिथ उसको पसंद नहीं था, तो उसने बोला कि मेरी बेटे के लिए ब्लैकस्मिथ मैं अलाउ नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो द फादर वुडंट एक्सेप्ट द सन इन लॉ सच अ प्रोफेशन, सो क्विंटन स्निक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज पैनल। ओके, सो व्हाट डिड ही डू? जब उसने मना किया कि जब क्विंटन मैस्टिस था उसको मना किया कि तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया, जो पेंटर था वो उसके स्टूडियो में गया, उसके फादर के स्टूडियो में गया और उसने एक पैनल पे एक फ्लाई ड्रॉ की जिसको आप मक्खी बोलते हैं। सो उसने फ्लाई इतनी रियलिस्टिक उसने ड्रॉ की थी कि जैसे ऐसे लगे कि वो एक रियल फ्लाई हो। तो जब वो उसके फादर जो पेंटर था वो जब एंटर होता है उसके स्टूडियो में और वो जो पैनल देखता है जब उसने बनाया था और जब उसने फ्लाई बनाया था तो उसको लगता है कि ये रियल फ्लाई है, सो ही वांट टू स्वेट इट अवे। तो वो ट्राई करता है कि उसको भगाए मक्खी को, लेकिन जब वो भगाने की कोशिश करता है तभी उसको पता चलता है कि ये तो एक पेंटिंग है। ओके, सो क्विंटन sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such a delicate realism. The master tried to sweat it away. उसको उठाने की कोशिश करता है। After that, Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. उसके बाद वो पेंटर को पता चलता है कि ये मास्टर ब्लैकस्मिथ जो क्विंटन मैक्सिस है
उसका नाम था क्विंटन मैट्सिस। यू हैव टू रिमेंबर द नेम क्विंटन मैट्सिस। तो ये उसने बनाया था ये जो फ्लाई हो, तो वो उसको अपने स्टूडियो में बुलाता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे अभी अप्रेंटिस हो, मेरे साथ काम करोगे। अप्रेंटिस मतलब जो न्यू लर्न होता है वो, तो वो पेंटर जो होता है वो उसको बहुत कुछ सिखाता है। और उसके बाद वो आप बोल सकते हैं कि ही मैरिड हिज बिलवेड, और उसकी शादी हो जाती है उसके बिलवेड के साथ, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और वो जो ब्लैकस्मिथ था वो अपने एज का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर बन जाता है। ओके, सो ये स्टोरी थी यूरोपियन स्टोरी, 15th सेंचुरी, याद रखना, क्विंटन मैट्सिस। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली 3 stories. The first story is about Wu Daozi, okay, Wu Daozi and Tang Emperor Xuanzong। तो वो दाऊजी ने वो जो पेंटिंग बनाई थी लैंडस्केप की, उसने बहुत कुछ बनाया था, फॉरेस्ट था, क्लाउड्स थे, ओके, ट्रीज थे, लेकिन उसने केव बनाया था और केव का जो डोर था वो अगर क्लैप करेगा वो तो वो खुल जाएगा और उसके अंदर जाते ही वो गायब हो जाता है। ये स्टोरी आपको याद रखनी है। ये एक स्टोरी है। ओके, नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट अ पेंटर हु ड्रू अ ड्रैगन। जो ड्रैगन बनाता था, बहुत मतलब ड्रैगन उसकी आदत थी, वो ड्रैगन बनाता था, लेकिन वो ड्रैगन की आइज नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? क्योंकि उसको डर था कि वो ड्रैगन वहां से उड़ जाएगा। ओके, सेकंड स्टोरी एंड लास्ट वन, यूरोपियन स्टोरी, 15th सेंचुरी, मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसका नाम था क्विंटन मैट्सिस, और उसको लव हो जाता है किसके साथ? पेंटर की बेटी के साथ। और लेकिन उसके फादर जो थे उसको अलाउ नहीं करते क्योंकि वो ब्लैकस्मिथ था। तो एक दिन वो क्या करता है, उसके स्टूडियो में जाके एक पैनल के ऊपर क्या बनाता है, वो फ्लाई बनाता है, पक्षी बनाता है, और इतनी रियलिस्टिक थी कि उसको ऐसा ही लगता है कि वो जैसे कि रियल फ्लाई हो। और वो उसका जो पेंट था उससे उसका फादर इम्प्रेस हो जाता है और उसको अलाउ भी करता है उसके स्टूडियो में, और उसकी शादी भी करवा देता है, और वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर बनता है अपने एज का। ओके, सो इतना याद रखना है आपको। ओके, you have to remember this all, and from tomorrow, from next video, we will start the lesson in detail. हम डिटेल में देखेंगे ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है जो भी हो दूर हो जाएगा। ओके, सो landscape of the soul on the Thali traveler. Okay, I hope you understand very well. In next video, we will discuss or we will start the lesson. Okay, thank you so much.